warm welcome to the second edition of India Education Summit 2022, hosted by the Indian Express. India Education Summit has been designed to focus on the need to take education to every nook and corner of the country on back of digital proliferation. Before we start, we would like to thank our presenting partner Google, our co-powered by partners Intel and Salesforce. We would also like to thank our associate partner, Hindustan Institute of Technology and Science. We request you remain connected with us throughout the course of the day via social media led by the hashtag IES2022. Before we start with our event, we request that you visit the Indian Express kiosk for a complimentary digital subscription. Alright, so let's start with the day, with the theme for the day being Bridging the Gap. I request Mr. Anant Goenka, Executive Director in the Indian Express Group, to come on stage and share a few words with us. I'm here to welcome all of you, and I'm here to welcome someone who's been an incredible force of nature in our politics, Dharmendra Pradhan ji. धर्मेंद्र जी कुछ 35 साल पहले नानाजी देशमुख चित्रकूट में बैठे थे. I just want to share a small story about him. Nanaji Deshmukh, I don't know how many of you all know him and are familiar with him. Nanaji Deshmukh or my great-grandfather Ramnath Goenka, who founded the Indian Express Group, they were very, very close friends. They fought the British together. When they were in school, they fought the British together, and they've been best of friends till their last days. तो रामनाथ जी के नाम से चित्रकूट में एक स्कूल है, और वो चलते आ रहा है, 35 साल से चलते आ रहा है. And that school gets a fair amount of support from various trusts and it's a well-oiled machine. But 25 kilometers away from that school is another school in my grandmother's name. Nanaji Deshmukh used to get everybody to get passionate about his causes, and so he would make people invest in it. So Nanaji Deshmukh made us invest in a school for Adivasi girls, 25 kilometers away from the heart of Chitrakoot. पिछले साल उस स्कूल में, ये आदिवासी स्कूल में जो है, कोविड की वजह से there was complete disruption. There was no, students weren't coming, teachers were struggling to teach. So I spoke to a good friend of mine, Amitabh Shah, who runs the NGO Yuva, and I asked him to help with digitizing that school, and वहाँ पर हमने Google Classroom लगा दिया था. So Google Classroom is basically where they have a projector installed in the classroom, and the projector is pre-installed with various lectures from some of the finest curriculum across the country. So whether it's a Byju's or whether it is various other pre-installed curriculum, it's installed on the projector, and kind of students can learn digitally. Fantastic graphics, fantastic connectivity, fantastic lessons. Teachers बहुत खुश, students बहुत खुश, and overnight lives are touched. Quality of education significantly improves. I was also very happy. All these years we have invested in the things that you would invest in a school. You have a lodging, you've got food, you've got stationery, teachers, the whole infrastructure. So we're very happy with this new edition of the Google Classroom. And then I got a little bit of mixed feeling. When I came back and when I witnessed what we saw in that Chitrakoot school, because, I was thinking ki in Chitrakoot, the place, the jungle, where so much of wisdom has come from exactly that part of India has been given to the world. Thousands of years, people are reading stories about characters that have in and out come from Chitrakoot. Why is it that students of Chitrakoot are so pleased with a Google Classroom more than they have been with the passionate, selfless teachers, who have been teaching there for 35, 40 years now?
And I think somewhere what has happened is that the teachers have begun to feel powerless, have begun to feel a little bit purposeless. They have begun to feel unequipped to teach what they are passionate about. That is a culture, that is a language that is comfortable to them. To some degree, I feel that teachers are kind of lost their sense of purpose in a system today where I put my child in a nursery which will help him go to a particular school, and I will put my child in a particular school which will help him go to a particular college. I'll put my child in a particular college which will help him get a particular job. In this nursery for school, school for college, college for job, somewhere I feel that teachers have kind of are struggling to find their purpose and their real inner calling and purpose of educating and teaching. And that is where I feel that how we think of education, what education means, has changed so much from the Gurukul time, where the Gurukul system which India is so proud of. What education meant then, what education means now, has changed so much. And in the new meaning for education, are teachers feeling as empowered and as purposeful as they should be? Dharmender ji, my grandfather Ramnath Goenka did not pass 8th standard. वो दरभंगा में, he was born in Darbhanga. वहाँ से he moved to Calcutta, where he was put under the tutelage of the famous Dalmia family. Some of you may know them and be familiar with them, of course. He learned to speak 8 languages fluently. He didn't finish 8th standard, but he could speak 8 languages fluently. He learned Marwari. He learned the language of business in Marwari from the Dalmia family. He spoke 8 languages, and he launched a newspaper in every language that he could speak. It became a leading newspaper in every part of the country. And at a time where there was no precedence for the industry of news, at a time when everything was done in-house, you had to hire your own staff to print the paper, to deliver the paper, everything was in-house, kept controlled. At a time when the cost of capital was 60%, somebody who didn't pass 8th standard launched 8 newspapers, leading newspapers across the country, and he shaped conversations every day in every language. Would you call him uneducated? Dadaji obviously taught a lot of us. I mean, in India, we look up to him for teaching us to stand up, to be forthright, the idea of democracy, the power of free speech. These are all the things that you would remember, Ramnath Goenka for. But as a family member, what Ramnath Goenka taught us as people in his family was not how to make money, but how to be passionate about your job. He didn't teach us, he taught us how to, the fundamental thing of spending less than you earn, which is obvious but is also so profound today. He reminded us about the Gita, which says that whatever you need, the universe will provide. It forces you to think about distinguishing between wants and needs. So today, as we are here for the India Education Summit, and I've seen the schedule, and there's a lot of great content, and everybody who's involved in the education sector in India has something to learn from and contribute to. But I hope we reflect on what does education mean today in India? What do we want education to mean? What is education at all? I think for many years, like the food we eat, even in education, like we have done in food, we are substituting quality for scale. Every year we're generating thousands of unemployable graduates on the one hand, students who are proud now that they can speak English, but many who are purposeless, who are lost, who are jumping, who go through 5 jobs in 2 years right after graduating, and who think about what the company does for them more than what they can kind of do for the company and for society. Dharmendra Pradhanji is here with us today after a major election victory, which he gets a lot of credit for in UP. He steered it. He kept 3 incredible political powers together on the same, on one line.
an outstanding job that he had pulled off in UP. And he's back to implementing the NEP, which we've all read, I'm sure, digested, studied so closely. I think the NEP tries to do some of the things that I kind of have been addressing today. It has won respect and regard from across the political class because of its ambitiousness and because it aims to address the class system between English language and Indian languages that we have been living with and we have created now for the last 100 years. I think for too long we have tolerated this divide in our education system that has kept so many intelligent Indians from achieving their potential only because they struggle with English. So I hope we'll kind of get into addressing these things over the next couple of days. Ladies and gentlemen, I won't come between you all much more. Dharmendra Pradhanji is one of BJP's biggest stars. We're extremely privileged to have him with us. They couldn't have been a better chief guest for this event. So please join me in welcoming him. Thank you so much. नमस्कार मित्रों, मेरे मित्र अनंत जी और इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा आयोजित इस इंडिया एजुकेशन समिट 2022 में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, मैं आप सभी को स्वागत करता हूं इंडियन एक्सप्रेस जैसे एक जिम्मेवार कम्युनिकेशन हाउस से, मीडिया हाउस से एक समाज जीवन की एक प्रमुख विषय पे 2 दिवसीय एक विमर्श आयोजन करने के लिए मैं अनंत जी का भी आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने मेरे को इस कार्यक्रम में इन्वॉल्व किया। संयोग से मेरे पास अभी भारत सरकार से शिक्षा विभाग की और स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप विभाग की जिम्मेदारी भी है ये, और मेरे लिए प्रासंगिकता होती है इसे सारे विद्वानों के बीच में पहुंचना, सरकार की कुछ विषय को, समाज की कुछ अपेक्षा को आप जैसे महानुभावों के सामने रखना, और आपके विचार को मैं निश्चित आपकी 2 दिवसीय कॉन्क्लेव की समिट की जो आउटकम आएगी, मैं आनंद जी निश्चित रूप में अपेक्षा रखूंगा आपकी कोई टोली बाद में मंत्रालय आके हमारी दोनों टीम को स्कूल एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन और उसके साथ स्किल डेवलपमेंट की जो एक्सपर्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप है उनको आप लोगों की फाइंडिंग्स, आप लोगों की रिकमेंडेशंस अगर आप हमें साझा करेंगे, शेयर करेंगे, तो हमें आने वाले दिनों में आपकी इस डिलीवरेशन को, आपकी समिट की जस्टिफिकेशन और बढ़ेगी, और मैं इस अपेक्षा भी आपसे रखता हूं। मित्रों, मैं आज के अवसर का मेरे उद्देश्य से थोड़ा कन्वर्ट करना चाहूँगा। आपने एक स्पेसिफिक विषय को चुना है, प्रासंगिक और सटीक विषय को चुना है, ब्रिजिंग द गैप। दुनिया भर की प्रशासक, नागरिक और विशेष करके पेरेंट्स इस विषय पे चिंतित है। दुनिया की जर्निंग पिछले 2-2.5 साल से जैसे हुए, उससे अगर सबसे लॉस किसकी हुई, किसकी नुकसान हुई, तो 21वीं सदी की प्रारंभिक क्वार्टर्स की, 21st सेंचुरी की हम 2 दशक पार कर चुके हैं। और आज जो स्कूल में बच्चे हैं, वो 5 साल की हो या 20-22 साल के हायर एजुकेशन में पढ़ने वाले विद्यार्थी हो, यही लोग आने वाले 25 साल में, माने जब 21वीं सदी आधे पहुंच रहा होगा, तब आज जो स्कूल में है, कॉलेज में, यही लोग निर्णायक होंगे। उन्हीं की प्रारंभिक अवस्था में, उनकी फाउंडेशनल जर्नी के समय में ग्लोबल पैंडेमिक के कारण एक बहुत बड़ा नुकसान हुई है जो किसी के हाथ में भी नहीं रहा। उसी बैकग्राउंड पे इंडियन एक्सप्रेस की इस एजुकेशन समिट और ब्रिजिंग द गैप
की एक क्वेस्ट के लिए आप लोग जब इकट्ठा हुए, ये बहुत अप्रोप्रिएट है, बहुत प्रासंगिक है। मित्रों, हमारी देश में अगर मैं 3 हिस्से में मेरे बातों को आने वाले 15 मिनट में इसे आपके साथ शेयर करूं। अभी भारत की स्थिति क्या है, भारत की चैलेंजेस क्या है, और हम सब मिलकर उसकी रास्ता कैसे निकाल सकते हैं। मित्रों, अभी अनंत जी ने कहा कि हमारी देश में हमें तो कभी कभी लगता है कि एजुकेशन को लेके एक फंडामेंटल कंफ्यूजन है। ये एजुकेशन है या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है। ये पिछले 75 साल में इस विभाग के नाम एजुकेशन से फिर ह्यूमन रिसोर्स हो गया, फिर एजुकेशन हो गया। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, उन्होंने एक गलती होते होते उसको बचाया। रिसोर्स किसको कहा जाता है? रिसोर्स रिलेटेड टू ए मटेरियल, एक जड़, एक मटेरियल कंपोनेंट को ही रिसोर्स कहा जाएगा। नेचुरल रिसोर्स हो, फिनेंशियल रिसोर्स हो, लेकिन कॉन्साइंस को हम भारतीय भाषा में जिसको चेतना कहते हैं, जिसको क्वांटिफाई करना बहुत चैलेंज है, बहुत मुश्किल है। वो विद्या से जुड़ती है, वो ज्ञान से जुड़ती है, वो संस्कार से जुड़ती है। ये सारे विषय की एक ब्रैकेट के अंदर रखा जाएगा तो उसकी नाम है शिक्षा, उसी की नाम है एजुकेशन। इसीलिए संविधान बनाने वाले हमारे विद्वान लोग राइटली इस विभाग के नाम उन्होंने एजुकेशन रखा था। कभी कभी समाज में प्रवास में करते करते थोड़ा लेट मी डू समथिंग आउट ऑफ बॉक्स, ये हम जैसे राजनीतिक प्रशासकों के मन में मोह आता है। इसीलिए किसी मित्र ने उसको एचआरडी कर दिया था, फिर अभी पटरी पे आ गया एजुकेशन। रामनाथ गोयंका क्या है? कंफ्यूजन। रामनाथ गोयंका जी को हम एजुकेशनिस्ट कहेंगे, फिलैंथ्रोपिस्ट कहेंगे, स्टेट्समैन कहेंगे, क्या क्या नहीं कहेंगे। जिस भाषा में आज इंडियन एक्सप्रेस या द न्यू इंडियन एक्सप्रेस देश में, दुनिया में आजादी की आंदोलन से अब तक 20वीं और 21वीं सदी की भारत की जनमानस को प्रभावित करने में इंडियन एक्सप्रेस की एक रोल है। मैं प्रारंभिक जीवन में इंग्लिश पढ़ना सीखा इंडियन एक्सप्रेस से। मैं जब स्टूडेंट था तब यूनिवर्सिटी आया, तब इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना सीखा मैंने इंडियन एक्सप्रेस से। तब इनकी बंटवारा नहीं हुई थी, एक इंडियन एक्सप्रेस आता था। इंडियन एक्सप्रेस को बनाने वाले व्यक्ति 8वीं क्लास तक पढ़ा था, इंग्लिश में नहीं पढ़ा था। अगर मैं दुनिया की किसी प्लेटफॉर्म पे कहूं, मेरे देश की कॉन्साइंस को कम्युनिकेशन में राइटली कन्वर्ट करने वाला व्यक्ति इंग्लिश जानता नहीं था, फॉर्मल स्कूल में सर्टिफिकेट नहीं पाया था, तब दुनिया में यह एक आश्चर्य होगा। गूगल में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, ऐसा हो सकता है क्या? इससे जब हम आगे बढ़ते हैं, आज देश की स्थिति क्या है? मित्रों, मैं अभी सुबह कुछ स्टैटिस्टिक्स देख रहा था। अभी अमूमन कहते हैं 2011-2022 के बीच में हमारा जनगणना अभी किसी भी कारण से रुका हुआ है। अभी थोड़ा थोड़ा अगर हम एक्स्ट्रापोलेट करके 11 को आज देखते हैं, लगभग 130-135 करोड़ की आबादी बन चुकी है। और उसमें एजुकेशन की ब्रैकेट में कितने लोग आते हैं, पहले हम तय करें कितने लोग एजुकेशन की ब्रैकेट में आना चाहिए, आते हैं, और उनको हमारे कुछ दायित्व है। इस बार 3 दशक के बाद जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है, एनईपी में एजुकेशन की फॉर्मल एंट्री ईयर कहा गया है एज 3। पहले ये गांव में और शहरों में गरीब बच्चों के लिए आंगनबाड़ी होके चलता था, शहरों में मध्यवर्गीय और अपर मिडिल क्लास के लिए, संपन्नों के लिए ये प्ले स्कूल की फॉर्म पे चलता था। बीच में एक तबका उसे मिसिंग था। सोशियो फाइनेंशियल कंडीशंस के कारण कुछ लोग गांव में संपन्न घरों में आंगनबाड़ी में नहीं जाते थे, शहरों में नहीं जाते थे, या प्ले स्कूल को अफोर्ड नहीं कर पाते, तो गांव में प्ले स्कूल होता नहीं है। इसलिए सरकार ने इस बार
राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक प्रमुख निर्णय किया है, एज 3 विल बी द एंट्री पॉइंट ऑफ फॉर्मल एजुकेशन प्रोसेस। एज 3 से अगर आगे 20 साल हम कैलकुलेशन करते हैं, यानी एज 15 साल पढ़ेगा, 5 + 3 + 3 + 4, इतने में वो हायर सेकेंडरी यानी 12वीं पास करेगा। 12वीं के बाद मैक्सिमम वो 4-5 साल पढ़ने की उसको पढ़ता है, कोई 2 साल पढ़ता है, कोई ड्रॉप आउट होता है, कोई ज्यादा से 4-5 साल पढ़ता है। कुछ लोग हायर एजुकेशन की वर्टिकल से आगे बढ़ के रिसर्च और पोस्ट डॉक्टरल वगैरह में जाते हैं। अमूमन एक भारत की नौजवान को हमारा अपेक्षा है 20 साल की एजुकेशन के बाद, स्किलिंग के बाद, वोकेशनल ट्रेनिंग के बाद वो एम्प्लॉयबिलिटी उसकी बढ़ती है। जैसे अभी आनंद जी ने कहा कि स्कूल, कॉलेज, ट्रेनिंग, एम्प्लॉयबिलिटी, यही ये जो जर्नी है भारत के सामान्य लोगों की, इसमें 20 साल की जर्नी करना पड़ता है। अभी भारत में उसकी संख्या है लगभग, थोड़ा अनुमानिक नंबर है, मैं रिस्क लेके कह रहा हूं आनंद जी, थोड़ा आपका संरक्षण भी मेरे को है, फिर कल को इंडियन एक्सप्रेस ये नहीं कहेगा कि शिक्षा मंत्री को भारत की जानकारी नहीं है। टेंटेटिव 52.29 करोड़, यानी लगभग 52 करोड़ 53 करोड़ ये वर्ग में लोग हैं। 52.29 करोड़ ये अभी संख्या है, उसको सेफली 52.5 करोड़ कहा जा सकता है। इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं परसेंटेज में, लगभग 38% होता है। अभी फॉर्मल और इनफॉर्मल सिस्टम पे कितने लोग आ पाते हैं, मैं जो कहा कि चैलेंज क्या है, सिचुएशन क्या है। भारत में स्कूल गोइंग बच्चों की संख्या है 25 करोड़, हायर एजुकेशन में 4 करोड़, यानी 29 करोड़ हो गया। वोकेशनल एजुकेशन, ITI, स्किलिंग, राज्य सरकार, फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन, भारत सरकार कि विभिन्न विभागों की अगर वोकेशनल और स्किल की इकोसिस्टम को हम जोड़ते हैं, ये उस 29 करोड़ में और 3-4 करोड़ लोगों को पहुंचाता है। दैट मीन्स द टोटल नंबर विल बी अराउंड 34 to 35 करोड़ मैक्सिमम। कुछ लोग अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप, ऑन जॉब ट्रेनिंग भी हो जाती है। इसको अगर मिलाए तो 35 करोड़। उसकी अर्थ यह है 53 करोड़ में से 35 करोड़ लोगों की अभी ये ब्रैकेट में से इतने लोग एक फॉर्मल इनफॉर्मल सिस्टम में पहुंचते हैं। तो चैलेंज नंबर 1, 21वीं सदी में भारत को अगर सुपर पावर होना है, भारत को अगर एक महाशक्ति बननी है, तब हमारी GER को बढ़ानी पड़ेगी, हमारी वोकेशनल नेटवर्क को, स्किलिंग नेटवर्क को एस्पिरेशनल बनानी पड़ेगी। हमारे सारे बच्चों को, केवल सरकार की जिम्मेवारी से यह नहीं हो पाएगा, 75 साल से नहीं हो पाया। इस बार बजट में प्रधानमंत्री जी ने विगत कई दशकों के अंदर से सबसे ज्यादा स्पेंडिंग की व्यवस्था किया है। 4.39 GDP की 39% GDP की इस बार स्पेंडिंग बजट प्रोविजन हुआ है। 1,04,000 करोड़ रुपए की वित्तीय व्यवस्था हुई है, इन दिनों में हाईएस्ट है। राज्य सरकारों की अलग स्पेंडिंग है। फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन की, जो आनंद जी ने 2 स्कूल के नाम लिया, शायद वो सरकारी की GDP की कैलकुलेशन में नहीं होगा, लेकिन वो खर्चा भी जोड़ा जा सकता है। ये सब करे तो भी मैक्सिमम 35 करोड़ लोग तक पहुंचते हैं। अभी हमारे पास 17-18 करोड़ बच्चों को एम्पावर करना आज भी चैलेंज है। यह हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है, उसकी रास्ता कैसे निकलना, यही है ब्रिजिंग द गैप। क्या टेक्नोलॉजी उसमें हमको कुछ मदद कर सकता है? क्या टेक्नोलॉजी को हम सिर्फ एडुटेक के ऊपर निर्भर करके छोड़ दें? ये सारे प्रश्न भी आते हैं। मित्रों, हमें लगता है कि मैं अभी इन दिनों में कुछ दुविधा में हूं। मैं जब ऐसे सारे इंटेल, सेल्सफोर्स, गूगल ऐसे लोगों को दिखता हूं, या बाइजू टाइप के लोगों को दिखता हूं, मैं सारे लोगों को स्वागत करता हूं भारत में। आई एम वेलकमिंग ऑल द एडुटेक इन माई कंट्री। एज एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री आई एम वेलकमिंग देम ऑफिशियली। लेकिन मेरे मन में इंडियन एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म में एक अपेक्षा है। मैं थोड़ा आनंद जी से थोड़ा सहमत नहीं हुए। डेमोक्रेसी है, इतना तो आनंद जी मेरे को
स्वीकार करेंगे। इन्होंने कहा कि उनके एक एक्सपीरियंस उन्होंने पैंडेमिक समय में देखा कि उन्होंने कहा कि टीचर अभी थोड़ा निराशा में है, टीचर की कोई पर्पस नहीं है। शायद इस प्रकार की एक एक्सट्रीम व्यू पॉइंट शायद हमारे देश में जो स्कूल एजुकेशन में, कॉलेज एजुकेशन में, हमारे घरों में टीचर है, काउंसलिंग भी एक टीचिंग है। बड़ा भाई ही काउंसलिंग करता है घर में। पाश्चात्य देशों में, एडवांस इकोनॉमी में, डेवलप्ड इकोनॉमी, उसकी एक व्यवसाय है, काउंसलिंग एक व्यवसाय है। शहरों में काउंसलर हजारों रुपया भी लेते हैं। जो हमारे गांव में मेरे बड़े भाई या हमारे गांव से पढ़ा हुआ कोई व्यक्ति सिविल सर्विस में है या मिलिट्री में है या छोटा मोटा एंटरप्रेन्योर, वही हमारे गांव के काउंसलर है। यह भारत में फॉर्मली धीरे धीरे ऑर्गेनाइज होते जा रहा है। मैं इन दिनों में प्रधानमंत्री जी ने 1 अप्रैल को परीक्षा पे चर्चा में देश के बच्चों को एड्रेस किया। उसमें एक उन्होंने एक प्रदर्शनी हमारे शिक्षा विभाग ने उस उद्देश्य में आयोजित किया था। मित्रों, मैं 3-4 मेरा अनुभव बताता हूं उनको, किन किन को उन 15-17 प्रोजेक्ट, छोटा सा ही था। ये जो कहा जाता है कि ये अभी के चैलेंज में, अभी ये 35 करोड़ बच्चों को क्या हम उनको जॉब के लिए पढ़ाना है, जॉब क्रिएटर के लिए पढ़ाना है, उनको हम इंडियन एक्सप्रेस में नौकरी के लिए पढ़ाना है या रामनाथ गोयनका बनाने के लिए पढ़ाना है? यह है फंडामेंटल चैलेंज। हमारी देश की पढ़ाई क्या हमको एक एपीजे अब्दुल कलाम बनने के लिए सिखाता है या इसरो में नौकरी के लिए पढ़ाता है? यह बहुत बारीकी की चीज है। इसी में से जर्नी शुरू होती है। मैं बहुत आशावान हूं। मैं विद्यार्थी काल से एक्टिविज्म पे जुड़ा हूं। मैं प्रधानमंत्री जी के आदेश से पिछले प्रारंभिक 7 साल में 14 से आगे के इंफ्रास्ट्रक्चर विभाग के काम देखा। मेरे सौभाग्य है जब देश में एनईपी इंप्लीमेंट हो रहा है, उस समय में मेरे को एक छोटी सी भूमिका दिया गया है उसको इंप्लीमेंट करने में। जब उसमें मैं प्रवास करता हूं, उसमें कुछ चीजों को दिखता हूं जिसके बारे में मैं आपको उल्लेख करूं। मैं उस परीक्षा पे चर्चा की अवसर पे 1-2 बहनों को देखा कोट्यम से। केरला की 2 बहन आए थे कोट्यम से, नंदिता और निवेदिता। पिताजी सामान्य घर की व्यक्ति है। उन्होंने प्रधानमंत्री जी को एक टेलीफोन पे ऐप दिखाया कि हमने कोरोना के समय में वैदिक मैथमेटिक्स में शून्य जहां से प्रारंभ हुई, शून्य, 0 इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन मैथमेटिकल वर्ल्ड टू द ग्लोब, वो वैदिक गणित से शुरू होती है। वैदिक गणित के बारे में जानकारी देने के लिए एक ऐप 7th और 11th में पढ़ने वाली 2 बच्ची केरल से, जब उनके ऐप मैंने देखा, मैं अज्ञानता से उसके पहले दिन, पीएम जिस दिन जाएंगे उसके पहले दिन में थोड़ा देखभाल करने के लिए गया था। उनको पूछा, इस ऐप की स्टैंडर्ड देख के मेरे को लगा किसी को पकड़ के इन्होंने बनाया होगा। जब मैंने उनको कहा कि बेटा इसको बनाया कौन हो, 7 साल में पढ़ने वाली निवेदिता ने कहा कि मैंने बनाया। मित्रों, मेरे मन में 2-3 प्रकार की फीलिंग हुई। एक तो मेरे अज्ञानता के बारे में मेरे को रियलाइज हुआ कि देखो, मैं मेरे देश की 7वीं में पढ़ने वाले एक बच्ची की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी में मेरा समझ नहीं है कि वो कहां तक जा सकती है, उसकी कॉन्फिडेंस। वो लड़की मेरे लिए स्टीव जॉब से कोई गुण में कम नहीं थी। ये मेरे भारत में कोट्यम में आज है। दूसरे एक लड़का को मैंने देखा, वो लड़का था आर्यन कुमार। उन्होंने कोरोना के समय में ब्लूटूथ में और मोटराइज एक स्टूल बनाया था, अच्छा बना था। वो मेरे को बहुत प्रभावित नहीं किया, लेकिन कहां से आया जैसे पूछा मैंने, आर्यन आप हो कहां के? वो कहा कि मैं झारखंड से हूं, मैं गढ़वा का हूं। मित्रों, अभी आप गूगल में कभी सर्च करके देखेंगे, गढ़वा आज भी 75 साल आजादी के बाद देश की एस्पिरेशनल जिले के अंदर से सबसे नीचे तबके में रहने वाला जिला है। मैं हैरान हूं और मैं आत्मविश्वास से भी भरा हूं। गढ़वा के आर्यन कुमार अगर ब्लूटूथ को यूज करके एक
स्टूल बना सकता है, अगर वो मौका मिले तो रॉकेट भी भेज सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम उसी में है, ये मेरे कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। वो कोई गूगल या इंटेल की टूल से अभी तक जुड़ा नहीं, और जुड़ जाएगा तो कहां जाएगा इसकी कल्पना करिए। फिर मैं आगे एक लड़के को मिला, दो लड़कों को मिला, गुजरात से वो आए थे, अनुराग और किंगसुक। मित्रों, मैं 4-5 साल पहले एक बार MIT में कुछ समय के लिए था। डॉक्टर मुनीज तब तक एनर्जी मिनिस्ट्री ओबामा रिजिम में वो एनर्जी डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी होते थे, थोड़ा मेरा परिचय था। मैं उनको मिलने के लिए चक्कर में गया था बोस्टन। MIT में उनको मिला। MIT में गपशप मारने के बाद उन्होंने कहा कि प्रधान, यू शुड सी द 3D प्रिंटिंग लैबोरेटरी इन MIT। तो मैंने उनकी सलाह पे वो मेरे को खुद लेके गए MIT लैबोरेटरी दिखाने के लिए 3D प्रिंटिंग की। मैंने प्रारंभिक कल्पना में शायद कह रहा हूं 2015-16 की बात है। 2015-16 में मैं पहली बार 3D प्रिंटिंग क्या होता है उसको देखा। मित्रों, मैं इसको इसीलिए आज रेफरेंस के कह रहा हूं कि जो अनुराग और किंगसुक को मैंने देखा, उन्होंने 3D प्रिंटिंग की एक प्रोटोटाइप उस एग्जीबिशन में रखा था। वो उसकी प्रोटोटाइप किसी भी गुण में, वो MIT की 5 साल पहले जो मैंने प्रारंभिक दिनों में 3D प्रिंटिंग की प्रोटोटाइप देखा था, कोई कम नहीं था। मैं और 2 बच्चों को देखा उसमें। ये तो साइंस की मैंने कहा अनुभव। साइंस सिर्फ होता नहीं है, मटेरियल चीज सिर्फ जिंदगी की हिस्सा नहीं होती है। एक मून वर्मा करके एक सामान्य घर की लड़की कपूरथला से आई थी। मित्रों, मैं इसको शब्द से वर्णन कर नहीं सकता हूं। उसकी 2 पेंटिंग मैंने देखा। एक माँ अपने बच्चे को गोद में लेके एक चित्र उन्होंने दिखा। उस माँ की आंखों में जो झलक मैंने देखा, जो एस्पिरेशन मैंने देखा, और उसको 12-13 साल की मून ने बनाई है। मैंने उसको 5 बार पूछा, चारकोल से बनाई है। मैंने पूछा, मून आपने बनाया? ना हमने बनाया। घर में कोई किसी ने मदद किया? नहीं, किसी ने नहीं मदद किया। जब प्रधानमंत्री जी उसको दूसरे दिन मिले, प्रधानमंत्री जी उनको मजाक कर कहे, ये सब करते हुए तुमको तो घर में डांटे होंगे, क्या पढ़ाई नहीं करके इसको कर रहे हो? वो मून की ताकत हमको प्रेरणा देती है। एक लड़के को हम और मिले, शुभम माझी। ये लड़का ऐसे फिर झारखंड की, अभी एक मूवी, एक OTT में एक सीरियल चल रहा है जामतारा, ये मूवी फॉर्म पे आया है। जामतारा करके एक मूवी आई है। जामतारा हमारी झारखंड को थोड़ा दूसरे प्रकार की परिचय के नाम पे जुड़ता है। उस जामतारा से एक लड़का आया, आदिवासी परिवार का लड़का। उन्होंने पेंटिंग किया है। मित्रों, MF हुसैन की पेंटिंग से कोई मात्रा में उस 13-14 साल के लड़के की पेंटिंग कम नहीं था। मैं सारे 4-5 घटना इसीलिए बताया कि ये सारा चीज के पीछे कोई ना कोई प्रेरक है, कोई ना कोई शिक्षक है। वो शिक्षक नहीं होता, शिक्षक उसके बड़ा भाई बहन हो सकते हैं, शिक्षक उसकी पड़ोस की कोई बुजुर्ग हो सकते हैं, शिक्षक उसकी स्कूल में भी कोई मिला होगा। शिक्षक रिलेवेंट नहीं हुआ है। हमें इस चैलेंज को समझना पड़ेगा। मित्रों, कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले, इस पिछले संडे में मेरे को भारत के एक टायर 3 की ग्वालियर से 3-4 बच्चे मेरे को मिलने आए। मेरे लड़का ने कहा कि कुछ बच्चे आए हैं ग्वालियर से, आपको मिलना चाहते हैं। मतलब बुला लो, क्या है, समझते थोड़ा उनसे। पहले आया कि हम थोड़ा एक प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं। मैं फिर आपके सामने कैंडिडली एडमिट करूं, यार बच्चे ये ग्वालियर से आए हैं, मेरे को क्या कह रहे हैं कि आपके वहाँ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देंगे, मेरे संडे को क्यों खराब कर रहे हैं। इसे मैंने सच में सोचा। मैं बोला चलो, मेरे ऑफिस में कहा कि थोड़ा देखो बच्चे आए हैं तो थोड़ा तलाश दे क्या उनके अंदर है। अनंत जी ने, जिसको अपने मित्र की NGO के माध्यम से आदिवासी बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्होंने एक वर्चुअल मॉडल ऑफ टीचिंग को देखा, ऐसे कुछ चीज उन्होंने दिखाना शुरू किया। थोड़ा मैं शिक्षा मंत्री, मेरे मन में भी थोड़ा, इस बीच में मैंने थोड़ा शिक्षित हो चुका है पिछले 8 महीने में, तो मेरे मन में भी थोड़ा अहंकार थोड़ा बहुत आया है। तो मैंने कहा कि चलो ये वर्चुअल लैब आप बना रहे हो। बोले ना। तो फिर आप क्या ये डिजिटल लैब बना रहे हो? बोले ना। एक लड़का इंदौर IIT, इंदौर की स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ के सिविल इंजीनियरिंग में गया नौकरी करने के लिए कंप्यूटर की दुनिया में। उनको जहां वो इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि आपने तो कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई नहीं किया, आप उसमें पढ़ नहीं सकते हो। फिर वो गया कोचिंग करने के लिए किसी के पास। कोचिंग में
कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले कहा कि आप ये छोड़ो, आप खुद कोचिंग कर दे सकते हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी बढ़िया है, इतनी एप्ट है, आप बाकी छोड़ो, इसी काम पे लग जाओ। उसे करते करते आजकल छोटा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट उन्होंने बनाई है, कोटा टाइप का कुछ इंस्टीट्यूट बना है ग्वालियर में। उससे पढ़ के 2 IITian उन्होंने, उसकी विद्यार्थी एक रुड़की से एक चेन्नई से, मद्रास IIT से पढ़ के तीनों मिलके और 2 और बच्चे मिलके 5 लोग एक स्टार्टअप बनाए। वो क्या बनाए हैं, मैं गूगल और इंटेल दोनों को और ये हमारे सेल्स फोर्स को निवेदन करूंगा, भारत में ऐसे लाखों टैलेंट पड़े हैं, वो क्या बनाए हैं उन्होंने। अभी समग्र शिक्षा अभियान में हमने क्लासरूम्स की ब्लैक बोर्ड को डिजिटल बोर्ड में परिवर्तित कर रहे हैं। राज्य सरकार भी आगे आ रहे हैं, भारत सरकार हाईएस्ट एवर बजटरी एलोकेशन उसके लिए दे रहा है। कभी कभी मैंने कुछ मित्रों को पूछा, डिजिटल बोर्ड तो लग गया, लेकिन उसमें पढ़ाएंगे क्या? फिर मेरे को ये वर्चुअल चीज हमको दिखाया गया। ये जो ग्वालियर की टायर 3 की शहर की बच्चे, पिताजी किसान, पिताजी प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला छोटा सा मुलाजिम, पिताजी पुलिस सर्विस में कांस्टेबल की स्तर पे काम करने वाला व्यक्ति, उन घरों के बच्चे नौकरी के पीछे ना जाते हुए, जॉब के पीछे ना जाते, उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया। उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिस सॉफ्टवेयर ने एक टीचर को, मैं साइंस की स्टूडेंट नहीं हूं, मैं सोशल साइंस की स्टूडेंट हूं, मेरे लेकिन जितने समझ बन पाई है, मैंने उनको पूछा ये क्या है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट मेरे को बताया कि देखो उसमें हम क्या डेवलप किए हैं। हमने ये डेवलप किया है कि जो उन्होंने मेरे को एक जेई एडवांस की एक क्वेश्चन दिखाए कि पिछले 2 साल पहले जेई एडवांस में फोर्स, फिजिक्स में फोर्स यानी क्या होता है, कैसे उसको आंसर करना, एक प्रश्न दिखाए। इसको जब टीचर क्लासरूम में पढ़ाता है, कैसे पढ़ाता है? फोर्स को मेजर करने के लिए कोई तो पढ़ाया होगा, कोई विद्यार्थियों को कोई टीचर ने अपने ब्लैक बोर्ड में चौक के माध्यम से या कोई ग्राफिक्स के माध्यम से पढ़ाया होगा, या कोई वर्चुअल एक्सपेरिमेंट में पढ़ाया होगा। उन्होंने कहा हमने उसी की खोज में एक सॉफ्टवेयर बनाया कि टीचर फोर्स को समझाने के लिए उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से टीचर की जो समझ है फोर्स की, फोर्स या ग्रेविटी के अनेक उदाहरण हो सकता है समझाने के लिए। कोई कहेगा कि भाई पेड़ से आम गिर गया, कोई कहेगा कि आपने फुटबॉल को जो किक मारा वो भी फोर्स है, कोई कहेगा कि जो रस्सी में आप खींच रहे हो वो भी फोर्स है, कोई कहेगा कि नौका में आप जब नाविक सेलिंग करते हैं वो भी फोर्स है। ये सारे फोर्स है। वो टीचर के अंडरस्टैंडिंग को अनमंडल करने के लिए, टीचर अपने इनोवेशन को, अपने कल्पना को ब्लैक बोर्ड तक लाने के लिए जो बेसिक टेक्नोलॉजी आज जो मौका देती है, कोडिंग करके उन्होंने भारत की टीचरों को उस फ्रीडम देने के लिए, उसकी इनोवेशन को एक्सप्लेन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया। और पिताजी किसान ही है, पिताजी प्राइवेट सेक्टर में, यानी प्राइवेट सेक्टर कह रहा था, ग्वालियर में क्या प्राइवेट सेक्टर होगा? कोई सेठ जी के वहां घर गांव ऑफिस में काम करते होंगे, कांस्टेबल की बेटा है। ऐसे बैकग्राउंड के लोग आज इनोवेटर बन रहे हैं। मित्रों, ये अपॉर्चुनिटी है। अगर हमें 17 करोड़ बच्चों को और 35 करोड़ अभी के बच्चों को, यानी 52-53 करोड़ बच्चों को अगर, और 52-53 करोड़ कहें, ये यंग पॉपुलेशन है भारत की, यही है डेमोग्राफिक डिविडेंड। ये पूरा यूरोप को ऊपर हो जाता है, अमेरिका का ये 1.5 गुना ज्यादा है। ये मेरे पोटेंशियल है। अगर इनकी सबकी इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कब बढ़ेगी? अगर ये नॉलेजेबल होंगे, ये एजुकेटेड होंगे। ये सिर्फ अगर एम्प्लॉय होने की तलाश में पढ़ाई करेंगे तो ये देश कुछ नहीं हो पाएगा, कंज्यूमिंग इकोनॉमी हो जाएगा। ये एक एम्प्लॉयर होने वाला इकोनॉमी बनानी पड़ेगी, एंट्रप्रेन्योर वाला इकोनॉमी बनानी पड़ेगी, रामनाथ गोयनका वाला इकोनॉमी बनानी, एजुकेशन देना पड़ेगा। इसीलिए मैं आज इंडियन एक्सप्रेस में एक अंतिम अपेक्षा रख के मेरे वक्तव्य को समाप्त करूंगा। वो क्या है? मित्रों देखो, संयोग है, हम अभी अमूर्त काल में है। अंग्रेजों से, गुलामी से मुक्ति होने का 75 साल की आज हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं। आने वाले 25 साल भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। आज वैक्सीनेशन में भारत दुनिया के लिए मॉडल बन चुके, विशेष करके इमर्जिंग इकोनॉमी के लिए।
डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए 180 करोड़ डोजेस भारत में लग चुका है। हम पीपी किट 2.5 साल पहले एक पीस भी नहीं बनाते थे, आज हम एक्सपोर्टर बन चुके हैं। आज ग्लोबल फार्मा लैब भारत बन चुका है। आने वाले 25 साल में भारत, जो ह्यूमैनिटी की बात हम अगर कहेंगे, वसुधैव कुटुंबकम हमारी संस्कार में है, जिसको आज ग्लोबल इडियम्स में ह्यूमैनिटी कहा जाता है, मानवता कहा जाता है, उसकी संस्कार भारत की एजुकेशन में, भारत की घरों में, भारत की डीएनए में पड़ा है। हम भारत की 53 करोड़ बच्चों को एंटरप्रेन्योर बनाना, इंडस्ट्रियस बनाना, एम्प्लॉयर बनाने की मोड़ पे लेके आएंगे, तब जाके ना केवल भारत की समस्या की समाधान होगा, ये दुनिया की समस्या की समाधान भारत के अंदर पड़ा है। ग्वालियर में पड़ा है, गढ़वा में पड़ा है, कोट्यम में पड़ा है। इसको कैसे मूवमेंट करना है, इसको एक जन आंदोलन कैसे करना है, यह समाज की जिम्मेवारी है। इसीलिए मैं बहुत आभारी हूं इंडियन एक्सप्रेस का, आपने इसी प्रकार के एक महत्वपूर्ण विषय पर एक डिबेट खड़ा किया है। और संजोग देखिए, इस अमृत काल में एक ओकेजन होनी चाहिए आगे की छलांग लगाने के लिए। आगे की 25-30 साल की छलांग लगाएंगे, जब हम 2050 तक पहुंचेंगे, 2047 तक पहुंचेंगे, इंडिया अपन इंडिपेंडेंस की 100 इयर्स पालन करेगा, तब हमारे पास ना केवल हमारे देश के सॉल्यूशन होनी चाहिए, ग्लोबल सिटीजन हम ही बनाएंगे, हमारे पास ग्लोबल सॉल्यूशन हमारे पास भी रहेगा। उसी के एक गीता, बाइबल, कुरान हमने बनाया है, जिसका नाम है एनईपी। अभी कभी एक्सप्रेस और एक बार मौका देगा, समय हो गया, ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, नेताओं की आदत है ज्यादा कह देना, इसलिए मैं खुद को अभी सीमित रखता हूं। एनईपी के ऊपर आप आने वाले 2 दिन में एक डिलीबरेट करोगे। मैं सभी चीज मित्रों को अपेक्षा रखूंगा। संविधान के बाद, आजाद भारत में संविधान के बाद प्रधानमंत्री जी की योजना से, कस्तूरी रंगन जी की नेतृत्व में, शायद समाज जीवन की सबसे बड़ा कंसल्टेटिव प्रोसेस से, भागीदारी से, विचार विमर्श के आधार पर बनने वाला डॉक्यूमेंट है एनईपी 2020। भारत को विश्व की समस्या समाधान की केंद्र बनाने की ताकत एनईपी में है। ये 2 दिन की एजुकेशन समिट, ब्रिजिंग द गैप, टेक्नोलॉजी को यूज करना, टीचर को असहाय नहीं, टीचर को एम्पावर करने की ये रिकमेंडेशंस आप बनाओगे। इसी अपेक्षा के साथ आप सभी को फिर मैं धन्यवाद देता हूं। नमस्कार। Question that we had spoken, I had heard you talk about last week only, but I think is one that we keep bringing up, is the idea of people, of the, this question of the brain drain and people wanting to study abroad or wanting to go abroad. I know it's something that concerns you, I know it's something that you're passionate about. If you can just spend a few minutes discussing how the Indian government and how you're thinking about retaining young talent in India. इसमें इंडियन एक्सप्रेस ही जिम्मेवार है। मैंने मेरे बेसिक स्टैटिस्टिक्स बताया, भारत में अभी स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाने वाले लोगों की संख्या है 35 करोड़। दैट मीन्स 350 मिलियन। 350 मिलियन। अभी भारत से बाहर कितने बच्चे जाते हैं? 1 मिलियन। हम क्यों चिंता करते हैं? हम वो गांव की, पिछड़े इलाके की, दरिद्र घर की बच्चों की शिक्षा के बारे में, जो मित्र आज हमारे देश में आए हैं, जो गूगल, इंटेल, इंडियन एक्सप्रेस के पार्टनर होते हैं, कोई फिलांथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये सब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। हमें उनको स्वागत भी करना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि सारे एडुटेक हमको स्वागत करना है। उनको भारत में एक बहुत बड़ा मार्केट दिख रहा है। हमें उस प्रकार की ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की टेक्नोलॉजी को, नॉलेज डिसेमिनेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स को लाके, हमें, हमारी चैलेंज है कैसे हम हमारी देश की 500 मिलियन बच्चों को एम्पावर करना है। यह हमारी चैलेंज है। इसलिए मैं उसको कभी, मैं उल्टा कह रहा हूं कि हमारे जो बच्चे जा रहे हैं, अगर मैं भारत की जीवन प्रक्रिया को, जो भारत की दुनिया की चित्र थोड़ा देखिए, विश्व में
ग्रोथ कहां है? व्यवसाय गोयनका साहब क्यों गए होंगे दरभंगा? दरभंगा महाराजा ने उनको शायद बुलाया होगा कि एक मारोड़ी को लेके आऊं तो मेरे राज्य के लोग यहाँ का मखाना को कैसे वो बाहर ऊपर ले पाएगा। फिर वो पहुंचे कलकत्ता। कलकत्ता हमारी भारत की इकोनॉमिक हब था। ग्रोथ जहां होगा वहां प्रोस्पेरिटी आएगा। मैं आग बंद करके कह सकता हूं 21वीं सेंचुरी की ग्रोथ सेंटर है भारत। इसकी कोई कंफ्यूजन किसी के मन में नहीं है, ना यूरोप के मन में है, ना वेस्टर्न वर्ल्ड के मन में है, ना चाइना के मन में है। मैं उसको ब्रेन बैंक मानूंगा। मेरे बच्चे जो बाहर पढ़ने जा रहे हैं, अगर आज सुंदर पिचाई या सत्य नाडेला मेरे एजुकेशन सिस्टम पे जाके वहां पहुंच रहे हैं, दे विल कॉम्प्लीमेंट माई इकोनॉमी, दे विल कॉम्प्लीमेंट माई नॉलेज अर्निंग। मैं उसको ब्रेन ड्रेन नहीं मानूंगा। अभी मौका मैं उनको दूंगा यहां, तो दे विल कंट्रीब्यूट हियर। ब्रेन बैंक है मेरा ये। और मेरे चैलेंज है 500 मिलियन जो आज फॉर्मली 350 मिलियन तक पहुंचे हैं, उनको कैसे एम्पावर करना, ये मेरे चैलेंज है। एंड नवीन जी, आप जो लैंग्वेज का जो बैरियर, आई नो पिछली बार हमें मिला था, मैं आपसे बात किया था, बट आई वांट टू हियर फ्रॉम यू, आई वांट एन ऑडियंस टू हियर फ्रॉम यू दैट यू नो दिस लैंग्वेज बैरियर। अभी आप हायर एजुकेशन में जाओगे, कॉलेजेस तक जाओगे, तो पूरा करिकुलम इंग्लिश में ही, इंग्लिश के लिए ही बना रहता है, हिंदी में नहीं बना रहता है, लोकल लैंग्वेज में नहीं बना रहता है। तो व्हेन लैंग्वेजेस डाई, कल्चर डाइज विद इट। हाउ मच ऑफ दिस इज इन योर माइंड एंड हाउ डू वी एड्रेस द प्रॉब्लम? ये देखिए, मैं तो बचपन से इस विषय का विश्वासी रहा हूं कि किसी भी व्यक्ति के अंदर जो गुण है, जो इनोवेशन है, जो इनोवेटिव कैपेसिटी है, जो क्रिटिकल थिंकिंग उसके मन में है, इसको परिप्रकाश करने के लिए कोई लैंग्वेज की बैरियर नहीं होनी चाहिए। देखो, दुनिया की जो 2-3 बड़े बड़े इकोनॉमी को अगर हम एनालिसिस करते हैं, और जापान क्वालिटी में और अच्छे मैन्युफैक्चरिंग की वर्ल्ड की आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अच्छा देश बना है। जापान के बच्चे अपने इनोवेशन को इंग्लिश लैंग्वेज की प्रिज्म में नहीं दिखते हैं, जापानी लैंग्वेज में दिखते हैं। फिर मैं वेस्टर्न वर्ल्ड में एक देश का नाम लूंगा, जर्मन। जर्मन अगर इंजीनियरिंग कैपेसिटी से आज एक दुनिया की स्टैंडर्ड्स बेंचमार्क खड़ा किया है, उनकी कोई कंपल्सन है इंग्लिश लैंग्वेज से करना। हम भारत में इस कंफ्यूजन में ना रहे, और नहीं है। मैंने फिर आप ही के रामानाथ गोयनका जी इंडियन एक्सप्रेस की कल्पना करते हुए शायद वो हिंदी में किए होंगे या मारवाड़ी भाषा में किए होंगे कि मैं ऐसा एक कम्युनिकेशन हाउस बनाऊंगा जो मल्टीलिंगुअल होगा, इंग्लिश भी एक होगा। फिर आगे जैसे मार्केट जिसको लेगा। लैंग्वेज दुर्भाग्य से पिछले कुछ दशकों में से हम कॉलोनियल रूल के बाद इंग्लिश ग्लोबल बिजनेस की लैंग्वेज है, उसको हमको सीखना चाहिए। यह हमको भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी में जोड़ेगी। हमारी जो बाहर जाएंगे डिप्लोमेटिक नेटवर्क के लिए, मार्केटिंग के लिए, दे मस्ट नो इंग्लिश। एक सेट्स ऑफ लोग यहाँ रहे, जो बाहर के लोग आएंगे उनको अपने प्रोडक्ट को बिक्री करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज ही चाहिए, उसमें कोई असुविधा नहीं है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के लिए, क्रिटिकल इनोवेशन के लिए, लोकल कन्वेंशनल नॉलेज को, अभी देखो कोरोना के समय में मैं एलन मित्तल जी को मिला बीच में। मैंने, मित्तल साहब आपका कैसे दुनिया चल रहा है? उन्होंने कहा कि मैं हल्दी खा रहा हूं, मेरे ब्रंच शुरू होता है एक बहुत बड़ा गोला हल्दी और ब्लैक कॉफी से। अच्छा बताओ, हल्दी टर्मेरिक की मेडिसिनल वैल्यू को भारत में जानने के लिए किसी को तो मेडिकल साइंस की जानकारी रखनी नहीं आवश्यकता होती है। सामान्य घर के लोग हल्दी को खाते हैं इसलिए जानते हैं उसके मेडिसिनल वैल्यू। ये मेरा कन्वेंशनल नॉलेज एंड विजडम है। इसके लिए कोई इंग्लिश लैंग्वेज की आवश्यकता नहीं है। मैं अनावश्यक एक लैंग्वेज की प्रिज्म में, विशेष करके इंग्लिश लैंग्वेज की कैद में हूं। मैं इसीलिए एनईपी ने महत्व दिया है मातृभाषा और स्थानीय भाषा पे। इसमें जो भारत की समय जो बच्चा घर से जहां की है, वो जिस भाषा से वो सुनता है, जिस भाषा को पहले बोलता है, अगर उस भाषा में अगर वो पढ़ेगा और लिखेगा, तब उसकी क्रिटिकल थिंकिंग की अल्टीमेट आउटपुट हो पाएगा। इसीलिए भाषा हमारे लिए महत्व है। एनईपी ने भाषा के बारे में इसीलिए महत्व दिया है। Yeah, I saw a hand there. Yeah, can we please? Yes. Please introduce yourself and please keep the question short and please keep it a question. Good morning, sir. I'm Dr. Aarti Prakash Khare here, a professor at Manav Rachna University in design department.
I have done my graduation from Banaras Hindu University with gold medal, Master of Design from IIT Bombay, and PhD from IIT Delhi. I want to give back to our society whatever I have earned and learned so far. One basic, I can say, idea about making a student or children through vocational training, bringing up to them in the future a better citizen, a better entrepreneur, or having a job, better job. I feel that there is a need to really restructure our courses in the school. एक बहुत ही बेसिक मुद्दा जिसको कहा जाए, जैसे आप अभी कह रहे थे सर, प्रधान सर, और अनंत जी आप कह रहे थे कि हमारे यहाँ हिंदी में पढ़ाई नहीं है कॉलेजेस में, तो can we have, so we can have trilingual or bilingual courses structure in such a way that we are having, हमने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है to empower our education system या हमारे शिक्षा संस्थान या शिक्षा को बढ़ाने के लिए. तो हम इस तरह से जब बात करते हैं तो we are using multiple language. I can go for like adding Marathi into it or Bangla to it or Gujarati it to according to the places. So I feel that that is one thing. And apart from that, there is one really a need, I feel, that we at the village level. I'll have to ask you to just keep it a little bit short. We can just Yeah, sure. So at the village level, definitely, if I feel the schools are going to restructure the curriculum from the profession basis, like कृषि बेस्ड यदि हम प्रोफेशन करें, भूगोल में यदि सिखाया जाए कि वेदर क्या है, धान क्या है, उसके हिसाब से गणित सिखाया जाए, उसके हिसाब से इंग्लिश सिखाया जाए, उसके हिसाब से हिंदी सिखाया जाए, मतलब उन सब्जेक्ट्स को रख के, कारपेंट्री को रख करके, या उस जगह के जो कल्चर है या उसका जो Thank you. I think we got the point. Thank you so much. Thank you so much. ये प्रश्न नहीं था, ये परामर्श था. ये परामर्श को मैं विनम्रता से स्वीकार करता हूँ. Myself, Preeti Sharma. I'm principal at Holy World School. So my question is very simple. What do we want? हम क्या चाहते हैं? शिक्षित भारत या साक्षर भारत? Thank you. Yeah. We'll take one more comment from there, and then I think we'll. आप सबको साथ में जवाब दें. Hi sir, my name is Aditya. I'm an engineer from a government college in Chandigarh, PEC. I work with GMAC. So my question is towards entrepreneurship, like you mentioned, right? So when जब हम एक entrepreneur की बात करते हैं, उसको एक multiple diverse skill set चाहिए. They need to know product management, they need to know manufacturing, sales, marketing, सब कुछ, right? So how do we build all of these diverse, holistic skill sets into this younger generation through the NEP? So that's my question. देखो, मैं ये दो ही प्रश्न अनंत जी दे के जाऊंगा, क्योंकि ये विषय ऐसा है कि हरि अनंत हरि कथा अनंत. एजुकेशन हम सभी की दिल में इतना बसा हुआ है, इतनी कल्पना है. मैं कभी कभी आके यहाँ खो जाता हूँ, और मैं सच में मैं ये विषय सुनने के लिए मैं घंटों लगाता हूँ, और मेरे को अच्छा भी लगता है. उसमें मैं मेरा आइडिया और को शार्पेन करता हूँ, और मेरे को प्रेरणा भी मिलता है. लेकिन जो दो विषय आया मेरे दृष्टि से, शिक्षित भारत और साक्षर भारत, ये दो में कोई मैं समझा नहीं इस विषय को. क्योंकि साक्षरता की एक समय समय से मैंने जब भी साक्षरता की मैंने भी एक आंकड़ा देखा कि बहुत सारे लोग हमारा अभी साक्षरता की ब्रैकेट में नहीं आते हैं. साक्षरता किसको कहेंगे, शिक्षित किसको कहेंगे? क्या जो बच्चे अभी कोरोना हुआ, कोरोना में बहुत सारे स्टोरी आया कि पढ़े लिखे बच्चों ने माँ पिताजी को छोड़ दिया. वो IITian हो सकता है, वो बड़े यूनिवर्सिटी की बड़े विद्वान हो सकता है, कोई बड़े ओहदे में काम करने वाला व्यक्ति, उसको शिक्षित कह सकते हैं क्या? ये शिक्षित साक्षरता बड़ा रिलेटिव टर्म है. मेरा दायित्व है और हम सभी की दायित्व है, भारत की 3 से 23 वाले आयु की जब भी जितना नंबर आएगा, आज वो 53 करोड़ अराउंड है, इसको एम्पावर करना, सशक्तिकरण करना, ये हमारी जिम्मेदारी है.
उसको किस फॉर्म पे करेंगे, किस मोड पे करेंगे, ये सब ब्रिजिंग द गैप, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन ये आया है। एक का जो प्रश्न आया कि एनईपी में ये बदलते हुई परिस्थिति में हमारी हाथों में स्किल सेट की और टेक्नोलॉजी की एक सबसे बड़ा स्टेटमेंट है हमारे हाथ में मोबाइल फोन। हमारे हाथ में रहने वाला मोबाइल फोन साल भर टिकता नहीं है। स्टीव जॉब ने क्या जादू की पिटोरा बना के गया है, आईफोन 5, आईफोन 6, आईफोन 10, आईफोन 13 तक शायद चला गया है, फिर प्लस आ जाएगा, फिर 25 फीचर इधर आ गया, 25 फीचर उधर आएगा, सीरी आ चुकी है। ये सारे इतने एनेबल चीज टेक्नोलॉजी दे रहे हैं कि हमें एक उसमें जो जूझना पड़ता है। मैं उसमें कोई एनईपी में इसमें बहुत सारा चीज है, कभी और एक बार मौका में चर्चा करेंगे। मैं इस सदन में बैठे सभी लोगों को एक टिप्स देके जाता हूं। जो मेरा युवा मित्र एंटरप्रेन्योर के बारे में पूछा कि उसको देखने में, मैंने जितना, ऐसा हजारों हो सकता है लेकिन मैंने एक को देखा, कोरोना के दिनों में मैंने एक इंटरनेट सेंसेशन को कहीं ढूंढ निकाला। उसको संयोग से मेरे राज्य से था, उड़ीसा से, और एक ट्राइबल लड़का था। मैं जिस क्षेत्र को लोकसभा में कभी रिप्रेजेंट करता था, मैं उस क्षेत्र की एक रिमोट इलाके की, यानी इंटरनेट से काफी दूर रहने वाला एक लड़का, शायद कोई टावर से इंटरनेट उसके इलाका में आता था, इसाक मुंडा। आप यूट्यूब में आज उसको थोड़ा देखना। इसाक मुंडा एक 8 क्लास तक पढ़ा हुआ दिहाड़ी खटने वाला मजदूर लड़का यूट्यूब में यूट्यूबर कैसे बने उसको देखा। मैं मित्र कह सकता हूं, ये जो रियलिटी शो होती है, इसाक मुंडा ने रियलिटी शो का एक लाइव मॉडल उन्होंने खड़ा किया। क्या करता है वो, कहता है कि मैंने उसको फोन किया, इसाक तुमने क्या किया? बाद में मिला उसको मैंने। इसाक बोला जब कोरोना में सब लॉकडाउन हो गया, काम धाम बंद हो गया, मेरे पास एक स्मार्टफोन था 3-4 हजार रुपया का, उसमें मैंने एकदम देखते देखते एक दिन मेरे को मिला कि इसमें से कैसे यूट्यूबर बन सकते हो, उसमें कैसे अर्निंग कर सकते हो। वो आज 1 लाख रुपया महीना अर्निंग करता है। वो क्या करता है, जंगल में रहता है। एक दिन वो कहता है कि देखो मैं इसाक मुंडा आज जा रहा हूं जंगल में कटहल खाने के लिए, कटहल लाने के लिए। वो जाता है जंगल से कटहल लाता है। कटहल, ये देखो मैं गया, मेरे साथ मेरे बेटा है, मेरे पत्नी है, हम गए, कटहल को तोड़े, कटहल ऐसा होता है, कटहल इतना मीठा होता है, कटहल को लेके आया, कटहल को पत्तल में खाया, कटहल बड़ा थोड़ा उसको साफ किया। इसकी दिखते दिखते उसके 7-8 लाख फॉलोअर हो चुके हैं। इसाक मुंडा को मैं एक दिन स्थिर मस्तिष्क में बैठकर सोचा, ये टेक्नोक्रेट है, कम्युनिकेटर है, आर्ट डायरेक्टर है, हीरो है, एंटरप्रेन्योर है। अब कभी इंडियन एक्सप्रेस में प्लेटफॉर्म पे आया नहीं, ना कोई आईआईएम में पढ़ा नहीं, ना कोई फॉर्मल स्कूल में पढ़ा नहीं है। मैं इसीलिए विनम्रता के साथ कहता हूं, इस देश की युवा पीढ़ी पे भरोसा करिए। जो बंडल से, जो हर्डल से, उसको मेरे को चैलेंज लगता है। हम चीजों को एक प्रिज्म में, एक चश्मा में, एक आईना में देखना चाहते हैं, एक आनक में दिखना चाहते हैं। यही मेरे को सबसे चैलेंज लगता है। उसको कैसे हम खोले, उसको कैसे अनबंडल करें, देश की अमाप पोटेंशियल को कैसे हम मैपिंग करें, मोनेटाइज करें, एंटरप्रेन्योरिटी में कन्वर्ट करें, एंटरप्रेन्योरशिप में कैसे कन्वर्ट करें, यही चैलेंज है। चलिए आप 2 दिन में इसकी डिलीवरेशन करोगे, फिर मैं आनंद जी आपको कॉफी पे बुलाऊंगा, आप आपकी टीम लेके आओगे, मेरे को थोड़ा मेरे एम्पावर करोगे थोड़ा। बहुत धन्यवाद। Thank you so much. Thank you so much.